हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में एक प्रॉब्लम करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन ग्राफ दे रखा है। तो two charges q1 and q2 are separated by distance l. You can see that there are two charges here, q1 and q2, and उनके बीच का सेपरेशन दे रखा है l. Okay. The variation of electric field E to the right of charge q2, ठीक है, इनके इस तरफ q2 के इस तरफ जो है उसका वेरिएशन दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का विथ पोजीशन x। ठीक है, इधर से q1 से x मेजर हो रहा है और q2 के राइट साइड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में दे रखा है। फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट द साइन ऑफ ईच चार्ज, सेकंड है रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ चार्ज q1 ओवर q2, q1 बाय q2 का रेशियो चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, लास्ट थिंग इज वैल्यू ऑफ b वेयर द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। यहाँ पे इंटेंसिटी देख सकते हैं कि it's reaching a maximum value and then it is decaying down. Okay, so तीन चीजें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला चीज है the sign of each charge. तो to identify the sign of each charge, just look at the directions of field. तो इधर देख सकते हो कि फील्ड इज नेगेटिव, दैट बेसिकली मींस यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है। इधर क्या है, फील्ड पॉजिटिव है, मतलब फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, इधर भी फील्ड क्या है, पॉजिटिव है। ओके, नाउ इधर अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो एट एनी पॉइंट you can say that ki for example here in this region, this particular region, either you can say that the field due to q1 अगर इस तरफ है and field due to q2 has to be in this direction, तभी तो वो इस तरफ रहेगा, है ना। and the other key point right here is, instead of looking at this, you could look at this particular point कि यहाँ पे this particular point is a null point. यहाँ पे electric field क्या है, zero. The electric field is zero. Now we know that if there are two charges and the null point is on the right of any one of the charges, so that ये दोनों charges क्या हो गए, they won't be having the same sign but they would have opposite signs. ठीक है, we know that कि if you have two charges, अगर दो charges है, अगर null point ये मान लो q1 है और ये q2 है, और अगर नल पॉइंट बीच में, मतलब दोनों का साइन सेम होगा, और नल पॉइंट बाहर है तो दोनों का साइन अलग होगा। एंड दोनों का साइन अलग होगा एंड नल पॉइंट किसके पास रहता है, छोटे चार्ज के पास रहेगा। तो इधर एक और इंफॉर्मेशन हमें ये मिल गया कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड है, इट इज गोइंग टू बी लेस देन Q2's मैग्नीट्यूड। ठीक है, सॉरी, Q2's मैग्नीट्यूड would be less than Q1's magnitude. Q2's magnitude would be less than Q1 magnitude. Okay, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है एंड उसके देखो Q2 के पास जैसे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स Q2, मतलब Q2 का साइन हैज टू बी व्हाट, नेगेटिव। एंड इफ Q2 इज नेगेटिव, Q1 क्या रहेगा, पॉजिटिव। ओके, तो आई एम जस्ट क्लियरिंग दिस। यू कैन सी दैट फर्स्ट पॉइंट, first part of the question, A part, you can say that Q1 is positively charged and Q2 is negatively charged. Okay, Q1 is positive and Q2 is negative. ये कैसा आइडिया लगा हमें, by looking at the field near Q2, उसका direction is towards Q2, इसलिए तो net effect would be towards Q2 because Q2 is negative. All right, now the second part of the question is ratio of absolute values of Q1 over Q2. Okay, so to identify that, we'll again look at this particular point. ये जो point है यहाँ पे, अब ध्यान से देखना कि फील्ड ड्यू टू Q1 किस तरफ रहेगा, इस तरफ। फील्ड ड्यू टू Q1 would be towards this one. Let's say कि sorry, field due to Q2 is going to be towards this one, तो E2 नाम दे देता हूँ। and field due to Q1, क्योंकि Q1 is positive, that would be in this direction. So here by magnitude you can say that at that point, let's call this point P for example, at P, you can say that ki electric field due to charge Q1 would have the same magnitude as electric field due to charge Q2. Okay, तो यहाँ पे electric field zero है। तो what is the electric field due to charge Q1? It is going to be K Q1 by, what is this distance, Q1 से इस point P का distance क्या है, it is L plus A.
तो L plus A the whole squared is equal to, what is the field due to E2? It is K times Q2 by ये डिस्टेंस क्या A है, तो दिस इज A स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, Q1 by Q2 का रेशियो, एब्सोल्यूट वैल्यूज का रेशियो मिल गया। इट इज L plus A by A the whole square। ठीक है, दैट इज द वैल्यू। तो दैट्स द वैल्यू। ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर है Q1 पॉजिटिव एंड Q2 नेगेटिव, एंड सेकंड पार्ट का आंसर है L plus A by A the whole squared होगा, राइट। Now, lastly, third part of the question is find the distance B where the intensity is maximum। ठीक है, तो right side of Q2, मतलब अगर let's say कि यहाँ से x दूरी पे है Q1, this is Q1 and this is Q2, और यहाँ से x दूरी पे अगर मैं फील्ड का इक्वेशन लिखूं, ठीक है, x दूरी पे, एंड यू नो दैट दिस डिस्टेंस इज L, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो L है। तो इधर Q1 की वजह से फील्ड कितना है, इधर ऐसा रहेगा E1, एंड Q2 की वजह से फील्ड कितना है, इस तरफ रहेगा E2। ठीक है, तो नेट फील्ड एट अ रैंडम पॉइंट इज गोइंग टू बी E which is E1 minus E2। ठीक है, it is going to E is equal to E1 minus E2। all right, so what is E1? It is Q1 by x squared minus E2 का वैल्यू क्या रहेगा, E2 would be KQ2 upon what is this distance, यहाँ से Q2 से कितना डिस्टेंस होगा, अगर x दूरी पे अगर बोले तो x minus L होगा, तो x minus L the whole square। ठीक है, now you can clearly see that at this particular point, इस पॉइंट पे dE by dx क्या है, जीरो है, dE by dx क्या है, जीरो। तो लेट्स डू दैट, dE by dx इज इक्वल टू जीरो कर दिया। तो d by dx जीरो करने से क्या आएगा, देखो, यू विल गेट k माइनस k, सॉरी, इसको माइनस 2KQ1 बाई एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 2KQ2 बाई x माइनस एल दी होल स्क्वायर, ये आने वाला है, इज इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो। ऑलराइट, नाउ आई एम गोइंग टू मेक स्पेस ओवर हियर, तो इस पार्ट को मैं हटा दे रहा हूँ, राइट। नाउ इधर इसको, इस इक्वेशन को में से देख सकते हैं कि यू कैन रिमूव माइनस 2k, ठीक है, एंड इस पार्ट को उधर ले जाओ, विल गेट Q1 बाई एक्स क्यूब, ये सॉरी इधर एक्स क्यूब आएगा नीचे, Q1 बाई एक्स क्यूब is equal to Q2 by x minus L the whole cube। ठीक है, that implies Q1 by Q2 is equal to x by x minus L the whole cube। ठीक है, तो यहाँ से Q1 by Q2 को क्या लिख सकते हैं, L plus A the whole square, L plus A by A the whole square is equal to x by x minus L the whole cube। all right, now इधर से इसको सॉल्व करते हुए, इफ आई रिमूव दिस, तो मुझे क्या मिलने वाला है, देखो, इधर से इसको x बाई एक्स माइनस एल को क्या लिख सकता हूँ, सॉरी L प्लस A बाई A होल रेस टू
2/3, इधर से हमें ध्यान से देखो तो हमें क्या चाहिए, वी आर सपोज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी, राइट। तो बी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें वो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक्स का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, इट इज एल प्लस बी, राइट। तो एक्स का वैल्यू एल प्लस बी पुट कर दो, एक्स इज इक्वल टू एल प्लस बी पुट कर देंगे, इसमें व्हाट डू यू गेट, एल प्लस बी बाई एल इज इक्वल टू एल प्लस ए बाई ए द होल रेस टू 2/3, एंड यहाँ से अपने को आंसर मिल जाएगा, दैट इज बी इज इक्वल टू वन, जैसे बी बाई एल हो जाएगा, एंड उस तरफ ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो एल इंटू एल प्लस ए बाई ए होल रेस टू 2/3 minus 1. This should be the answer. Okay.